Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start third chapter of from the Hornbill book, that is Discovering Tut, the saga continues. Discovering means खोज करना. Tut, it is the name of a pharaoh. The saga means story. Continue means लगातार आगे चलना. The chapter has been written by A.R. Williams. Students, in this chapter, the writer describes the historic archaeological event that took place on January 5th, 2005. On this day, the remains of King Tut was brought out of the burial chamber at 6 p.m. for about 3 hours and a CT scan was carried out. Now listen, in the Egypt, the kings are given the post of pharaohs. Means इजिप्ट में, मिस्र में क्या चलन था कि वो वहाँ के राजा को अपने फ़ैरो बनाते थे, उसको फ़ैरो बोलते थे, फ़ैरो की उपाधि दे देते थे. और इसी तरीके से ये जो टुट है, जिसका फुल नेम है टुटुनखामुन, तो इनके बारे में ये स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. इनकी मम्मी को किस तरीके से खोला गया. डू यू नो अबाउट मम्मी? नो. मम्मी मीन्स इजिप्ट में आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, ऐसे ही आपने इजिप्ट की ममीज़ के बारे में सुना होगा. वहाँ पर क्या होता था, जो किंग की जब डेथ होती थी तो एक स्पेशल टाइप का रेसिन लगाकर उसकी बॉडी पर चारों तरफ वो पट्टियों से उसे लपेट कर और तब उसको उस कॉफिन में रखा जाता था और फिर वो सुरक्षित रहता था वहाँ पर सदियों तक. तो इसी तरीके से जो ममीज़ उसकी ओपन हुई तो उसमें क्या क्लू सामने आए, क्या था और क्या पर्पस रहा उसके पीछे. व्हाट इज़ द रीज़न दैट पीपल वांट टू नो दैट हु वाज द किंग टुट. देयर इज समथिंग रीज़न. नाउ कम टू दिस चैप्टर, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. These are the expressions, important expressions. I will give you the detailed explanation of these expressions with the notes. Now, this is the picture of the king Tut, about whom we are going to read in this chapter. He was just a teenager when he died. He was. Who was he? He here refers to King Tut, the last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Heir means successor of the family. The last heir means अपने परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी. That had ruled Egypt, उस परिवार ने जिसने इतने सालों तक, 1, 2, 10, 20 साल नहीं, सदियों तक इजिप्ट पर अपना राज किया था. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. He was laid, जिसको लिटा दिया गया, to rest, laden, और आराम के लिए. laden means loaded, पूरा सजाकर, पूरा लोड करके, with gold के साथ, and eventually forgotten, और यहाँ तक कि उसे भुला भी दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. Since the discovery of means जब से उसको खोजा गया, discovery means खोज निकालना, of the tomb means मकबरा, उसका जो मकबरा था. in 1922, the modern world has speculated means assumed, अनुमान लगाना, about what happened to him. With murder being the most extreme possibility, और दिमाग में लोगों के क्या था कि most probably he was murdered, कि उसका मर्डर हुआ होगा अपने टाइम में. Now mark here the difficult words here and laden, discovery and speculated. These are the difficult words.
Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, और अब 80 सालों में पिछले वो अपना पहली बार ये जो टॉम है ये छोड़ने जा रहा था, मतलब उसको टॉम से बाहर निकाला जा रहा था. Tut has undergone a CT scan that offer new clues about his life and death. और टुट को अब सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, जहाँ पर उसका हर एक साइड से, मतलब जो आज की न्यू टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए उसके बॉडी का हर सेक्शन के अंदर आज स्कैन होना था. उसको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड निकाले जाने थे स्कैनर से, ताकि ये पता चल सके कि क्या क्लूज मीन्स हिंट मिलना, कि क्या उसकी डेथ की वजह रही और क्या उसकी लाइफ थी. एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा, प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब रीबिल्डिंग द फैक्ट्स about the life and death of the young pharaoh Tut accurately with the help of the latest technology. means latest technology को यूज़ करते हुए जो बॉयश मीन्स ये अपनी टीन एज के अंदर ही इसकी डेथ हो गई थी टुट की, तो उस बॉयश फेरो के बारे में उसकी लाइफ और डेथ की मिस्ट्री को जानने के लिए फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो नए डेटा थे अब सामने आने वाले थे. An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the King. An angry means raised, gussa. Wind stirred means moved up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place. मतलब जैसे ही किंग को अपने रेस्टिंग प्लेस से निकाला जाना था, जहाँ से उसको निकाला गया, तभी एकदम तेज हवाएं चलने लगी और मिट्टी के डस्ट में धूल मिट्टी के बड़े बड़े एक घोस्ट के शेप के अंदर डेविल्स जो थे वो बनने लगे. रेस्टिंग प्लेस से जब उसे निकाला गया इन द एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री मीन्स हियर कब्रिस्तान जहाँ से उनको रखा जाता है, ग्रेवयार्ड नोन एज वैली ऑफ किंग. और उसको क्या बोला जाता है? वैली ऑफ किंग, बिकॉज ऑल द किंग्स वर buried there. Dark belled clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. Dark belled means ब्लगिंग, बाहर की तरफ फूले हुए. बेल्ड क्लाउड्स हेड स्कर्डेड अक्रॉस, स्कर्डेड मीन्स मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, रनिंग अक्रॉस स्मूथली, धीरे धीरे मूव करना. द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग मीन्स कवरिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे मीन्स कवरिंग द स्टार एज इफ इन अ ग्रे कलर, जैसे ग्रे कलर के अंदर जो स्टार्स हैं उनको कवर कर देना. तो अब वो बादल जो थे पूरे दिन वहाँ पर आसमान में ऐसे ही इधर से उधर घूमते हुए दिखाई दिए, और अब उन्होंने रात को स्टार्स जो थे उनको भी कवर कर दिया. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. डेट और टाइम अब हमारे पास आ गया है कि 5 जनवरी 2005 में शाम को 6 बजे उसे वहाँ से निकाला गया. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड first into CT scanner brought here to probe the lingering medical mystery of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. The world's most famous, दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली मम्मी ग्लाइडेड मीन्स डेकोरेटेड विद गोल्ड लीफ और लिक्विड गोल्ड, या तो लिक्विड गोल्ड से या फिर गोल्ड की लीफ से उसे पूरी तरीके से सजाया गया था. हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैन, पहली बार इसका सिटी स्कैन के लिए इसको निकाला गया. ब्रॉट हियर टू प्रॉब मीन सीक, देखना, हेल्प करना. द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, जो इतने टाइम से लिंगरिंग की जा रही थी, जो इतने टाइम से पोस्टपोन्ड की जा रही थी, उस मेडिकल
रहस्य को खोलने के लिए आज पहली बार टूट की बॉडी का स्कैन होना था आफ्टर 3300 ईयर्स अगो, जिसकी डेथ पहले हो गई थी. स्टूडेंट मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स. Raised and blugging. Scadded means we can say running across smoothly. And cascade gray. Cascade gray means here covering the stars as if in gray color. Or glided, decorated with gold leaf or liquid gold. Lingering, postponing.